ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਤਰਸੇਮ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਵਿਤਾ ਰਾਣੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਰਾਣੀ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੂਨਮ ਅਗਰਵਾਲ, पायल जिंदल, राकेश जिंदल, कुणाल, कशिश, सीए गौरव अग्रवाल, गोमती अग्रवाल, डॉक्टर सौरव अग्रवाल यूएसए, डॉक्टर प्राची अग्रवाल यूएसए, हरजिंदर कुमार, सुषमा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪ ਲਾਲ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸੰਨ 1949 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੰਨ 1969 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਵਿਕਾਸ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਪਾਇਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪਾਇਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿਕਾਸ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੇਵਰ ਸੀਏ ਤਰਸੇਮ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਭਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले जाएंगी दुआएं काम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले जाएंगी ਉਪਰੰਤ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। उनमें हर
बहुत सेवा और आखिरी दर्जे में भी काफी बीमार हुए, लेकिन उस समय ये जाना जाता था कि अब शायद नहीं रहे, लेकिन ठीक भी हो गए और आगे एकदम अचानक तबीयत खराब हुई, जिससे कि भगवान के चरणों में जाना। ये दोनों परिवार अपना लाला राम जी और हरि राम, नाम भी बहुत सुंदर परमात्मा में। वैसे ही इन दोनों परिवारों के बीच में जितने भी बच्चे हैं, इतने संस्कारित हैं, इतने भगवान की कृपा इनके ऊपर भगवत भक्ति है कि सामाजिक कार्य में भी और धार्मिक कार्य में भी हर एक तरह से प्राप्त है। अगर कोई कहते कि ऐसा कार्य करना है, अच्छे ना का तो कोई मतलब ही नहीं, नहीं का तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये तो देखो पुत्र और माँ का प्यार क्या होता है, पुत्र वधू और माँ का प्यार क्या होता है सभी को। लेकिन एक पति पत्नी जैसे नाव होती है और मल्लाह होता है, इस तरह से होता है। बिना उसके वो नहीं चलना, बिना उसके वो नहीं चलना। तो आज भाई जोगिंदर जी के लिए अब इन बच्चों को माता का भी देना है और पिता का भी त्याग देना है और अपने आप को भी समझना है। यही गरुड़ पुराण में हमेशा यही अभ्यास करा रहा है। इतना गरुड़ पुराण 16 अध्यायों में यही बताया जाता है, माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। आज जब हमारे घर में माता पिता बैठे हैं, तो अगर हम मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, कहीं भी जाएं, अगर हम उनकी सेवा नहीं करते हैं और जाकर के वहाँ पर पोछा लगाते हैं, दूसरों को उठाते हैं, बिठाते हैं, इससे हमें कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमारे घर में तरस रहे हैं हमसे बोलने के लिए कि एक बार अगर मुझसे बोल देते तो बहुत अच्छा था। इसलिए बहुत ही बड़भागी हैं जिसके कि माता पिता हैं और उनकी सेवा करने का उनको अवसर प्राप्त होगा। और जब तक ये शरीर है तभी तक आप सेवा कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, उपकार कर सकते हैं और दान कर सकते हैं, दया धर्म सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए इस तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। भगवान राम ने देखो बचपन से ही बताया, भगवान किसी को अपना भगवान नहीं बताया कि मैं भगवान हूं। देखो इंद्र भी चक्कर में आ गए कि ये तो पहले भगवान है, भगवान उत्पन्न हुए, भगवान उत्पन्न हुए, पर भगवान तो है ही नहीं। हम इनके द्वारा देखते ये भगवान है, क्या है, कैसे, किस तरह से है, ऐसे उसके मन में विचार आने लगा। तो आप लोग कथा को सुनते हो, बराबर सुनते रहते हो, विचार जब इस तरह से आया तो सभी बाल बाल जो गोवर्धन की पूजा करते थे, उस समय कृष्ण भगवान ने कहा कि ये जो है कि किस लिए इनकी पूजा करते हो? कहते हैं इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र की पूजा करने से हमें वर्षा होती है, जल मिलता है, पानी मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन भगवान ने कहा कि आपकी इंद्र की पूजा नहीं करनी है। छोटे से बालक ने, बाबा आपकी गोवर्धन की पूजा करनी है।
अब गोवर्धन की पूजा करनी है? नहीं बेटा, हम तो अनादिकाल बहुत काल से इंद्र की पूजा करते चले आए हैं। कहने लगे इंद्र दिया ही क्या आपने को? क्या दिया इंद्र ने? अगर दिया हमें तो कुछ, आपको गोवर्धन ने दिया। देखो वहां पर भूमियां आपकी चलती हैं, घास देते हैं, वहां पर जल है, जल पीने के लिए मिलता है इनको, सब कुछ तो गोवर्धन देते हैं। वो क्या देते हैं? उन्होंने कभी दिखाई दिया, कभी कुछ कहा? लगे नहीं। वो ही उनका अभिमान हटाने के लिए भगवान जब उनके अंदर ये अहम आ गया कि क्योंकि जब आप कोई भी कार्य करो, अगर धर्मार्थी का काम करो तो यही लिखा है हर पुराणों में, 18 के 18 पुराणों में, ये 19वां पुराण नहीं है, 18 पुराण के बीच में भी गरुड़ पुराण है। और इसमें बार बार यही लिखा हुआ है कि अगर धर्म का कोई काम करो तो भगवान को अर्पण कर देना। कभी भी अपने मुख से ये नहीं कहना अरे आपका तो सत्संग है, आपको तो परमात्मा के ऊपर कृपा है। आप जाते हो भगवान का दर्शन करने के लिए तो आपको दर्शन नहीं होते, तो ये सोच लेते हो कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है ही नहीं। ये सोचो कि आपके ऊपर अत्यधिक कृपा है, क्योंकि आपको वहां पर कितनी देर तक उन्होंने खड़ा कराया है और मेरा नाम जाप कर रहे हो। और जब हम दर्शन देंगे तो पूर्ण रूप से आपसे मिलेंगे। जैसे कि विदुर जी से कृष्ण भगवान मिले, क्योंकि उसी दिन उन्होंने भगवान को आना था संधि कराने के लिए। तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा कि देखो अंधा वो अंधा नहीं है जो हृदय का अंधा हो। अब तुम अपने पुत्र के मोह में आ करके ऐसा कुछ ना कह देना जिससे कि भगवान को अच्छा ना लगे। इसलिए जो प्रभु कहेंगे उसको मान लेना। लेकिन वो पुत्र के अंधे में आकर के और दुर्योधन ने उनको धक्का मार करके बाहर निकाला। आकर के अपनी पत्नी श्वेता से कहने लगे कि आज तो भगवान से मिलना था, अब तो भगवान मिलेंगे ही नहीं। कहने लगे भगवान आपको ही मिलेंगे और किसी को नहीं। और इधर 56 प्रकार का भोजन बनवाया हुआ है, कितने प्रकार का मिष्ठान बनवाया हुआ है कि मैं भोजन करा करके अपना बना लूंगा। लेकिन भगवान ने कहीं पर भोजन नहीं किया। मनुष्य अवतार, दो ये राम और कृष्ण, कहते हैं जब कहने लगे तुम पीछे जाकर के खड़े हो जाना तुम्हें ही मिलेंगे। जब वहां पर बातें हुई और निगाह मार करके कन्हैया ने देखा तो सबसे पीछे विदुर जी खड़े थे और इशारा किया कि आप चलो, हम आपके घर आ रहे हैं, मुझे बहुत जोर का भूख लगी है। तो आगे आपको पता ही है कि कैसे भोजन कराया, कैसे उन्होंने क्या किया, किस तरह से। तो भगवान जब उनको माखन मिश्री लेके पहुंचे, उनकी पत्नी ने छिलका निकाला केले का, आज भी जाते हुए साग भी करता। तो भगवान ने अहिं पर अपने अंदर अगर धर्म का कार्य करने चले हो तो बिल्कुल भी अहम निकाल कर, अगर थोड़ा से सूक्ष्म रूप हमारे हृदय में रह गया तो जितना तूने किया दान, ज्ञान, परोपकार, उपकार, सब कुछ वहीं पर खत्म हो। बनाते बनाते देखो यश कीर्ति बनाते बनाते कितने साल लग जाते हैं और पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जो भी हमारे अंदर अहंकार है, क्योंकि हमारा मनुष्य का जीवन है,
के जीवन में आकर के हमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं आना चाहिए। और ये अहंकार जो है जब इंद्र को आया तो भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई। गो से गोविंद, देखो गो से गोविंद, गो से गोवर्धन, अपने नाम के ऊपर है गोवर्धन कहने का मतलब भगवान ने अपना नाम सभी के साथ जोड़ा। और जब वहां पर भोजन किया तो भोग लगाया तो गोवर्धन जी भगवान ने हजारों मुख बना करके सभी का भोजन करने लगे। नंद बाबा ने कहा, अरे कन्हैया ये तो प्रसाद सब कुछ खाया जा रहा है, हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलना है। तब वहां पर कन्हैया ने कहा, बाबा सबको मिलेगा प्रसाद, अभी तो गोवर्धन को भोजन कर लेंगे दो। और बाद में कहने लगे, आंख बंद करो, देखो कितना प्रसाद आपको मिलता है, जितना जितना ले गए थे उससे कई गुना ज्यादा उनको प्रसाद भी मिला। कन्हैया ये तो बहुत अच्छा। और इसी में उस नर इंद्र को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया तो उन्होंने वर्षा का शुरू कर। अब इतना वर्षा किया, सब कुछ बारिश से डूबने लगा। तब सबने कन्हैया का आप चालो, आप इसीलिए हम कह रहे थे इंद्र की, कहने लगे जिसकी पूजा किया है उन्होंने ही बचाना है। सब जने चले गए और छोटी लगा करके खड़े हो गए। 6 दिन हो गए, 6वें दिन उन्होंने कहा कि देखो भैया अब कन्हैया तुम तो थक गए, तुम थोड़ी सी उंगली हिला लो तो आपको आराम मिल जाएगा। और हम सभी ने पकड़े, क्योंकि वहां पर बालों के अंदर भी अहम है कि ये कन्हैया अकेला ये क्या उठा लेगा 7 साल का बालक, हमको जो है कि इसके साथ छोटी लगाए। तो वहां पर कन्हैया ने सभी ग्वालों का अहंकार किया। कहने लगे ठीक है तुम कहते हो तो मैं उंगली को हटा। जैसे उंगली को हटाना शुरू किया वैसे चढ़ करके सारी लाठी टूट गई। अरे कन्हैया बचाओ बचाओ। तब तो जो है कन्हैया ने दोबारा लगा दिया। और जब जाकर के इंद्र ने देखा कि बहुत वर्षा हो चुकी, अपने दूतों को जाकर के भेजा कि जाके देखो वृंदावन डूब गया कि रह गया। जाकर के देखा तो वृंदावन पहले से भी ज्यादा हुआ। अरे महाराज इतनी बारिश की है आपने, वहां पर तो ये बूंद नहीं दिखाई दे रही है कि कहीं बारिश हुई भी है। तो ये भगवान कृष्ण की लीला है, क्योंकि कथा आगे जाती है। कहते हैं कि उस जल को पिया कौन? त्रेता युग में जब भगवान सभी कार्य को करके आगे और दोबारा धरती पर प्रदान हुए, तो देखो जब सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है तब आप हवन यज्ञ करते हैं कि अब हमारी मनोकामना भगवान ने पूर्ण किया और भगवान के लिए भी अब हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। तो राम सीता ने मिलकर के यज्ञ को आरंभ किया और यज्ञ के बीच में सीता मैया ने कहा कि प्रभु आप ऐसा ब्राह्मण ले आना भोजन करने के लिए कि मैं जितना भोजन बनाऊं सभी भोजन जो है ये ग्रहण कर लें। राम ने कहा ठीक है मैं कह देता हूं, आप बनाओ भोजन। अब भोजन बनाना शुरू किया। सीता माँ ने अपने हाथ से भोजन बनाना शुरू किया और ब्राह्मण आकर के बैठ गए। अब भोजन कर रहे हैं, बनाते सारा भोजन सीता जी माँ का खत्म हो गया। अब तो कहने लगी अब क्या करो? कहने गणेश जी का ध्यान करो। गणेश जी भी आ गए, वो भी बनवाने लगे। फिर कहने लगे उनकी 2 पत्नी है रिद्धि सिद्धि, उनको बुलाओ, उनको भी बुला रहे। फिर अष्ट सिद्धि बुला रही, 9 सिद्धि बुला रही, 12 सिद्धि बुला। भोजन बनता चला जा रहा। भोलेनाथ
राम जी देख रहे थे। जब 6 दिन बीत गए तब जो है कि सीता माँ ने कहा कि कह दो थोड़ा से जल पी लें, क्योंकि अभी जल आपने दिया ही नहीं। कहने लगे महाराज घर से आज्ञा है कि आप थोड़ा से जल ग्रहण कर लीजिए। कहने लगे अभी तो हमें चुराई बड़ी लगी हुई है, तो अभी जल पीने की इच्छा नहीं, इसलिए मुझे भोजन ही देते जाओ। तो अगस्त ऋषि बैठे थे भोजन करने के, जिन्होंने 2.5 अंजलि में समुद्र को पी गए। तो उन्होंने जब वहां पर बैठे और 7वां दिन हुआ, सीता जी ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। कहने लगे देवी हमने थोड़ी भोजन किया, इस मुंह में डालता रहा, पता नहीं कितनों को ये भोजन गया तुम्हारा, तुम क्यों ऐसा कर रही हो, मैं तुम्हें खुद ही प्रणाम कर रहा हूं। तब वही भगवान ने कहा था कि तुम्हारे द्वापर में तुम्हें जल ये पीना पड़ेगा, क्योंकि द्वापर युग में मेरा जन्म होगा और कृष्ण नाम से होगा, और उस समय आप जो है इंद्र हमारे ऊपर पूजित होकर इतनी बारिश करेंगे कि ये जल तुम्हें एक कोने में बैठ करके अगस्त ऋषि ने जितना जल जाता था सब पीते जाते। इसलिए हमारे अंदर किसी तरह से अगर इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य का ही जीवन ऐसा है जिसमें हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और किसी भी जीवन में तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। जैसे आग लग जाने पर कौन से ऐसा दुर्बुद्ध मनुष्य है जो कुआं खोदना प्रारंभ करेगा? इधर आग लगी हुई है और इधर से कुआं खोद रहे हो कि कुआं खुद जाएगा, तब हम इस जल से बुझाऊंगा, तब तक तो घर जल करके राख हो जाएगा। इसलिए बहुविध यहाँ पर बताया गया कि कालम ज्ञाते नाना कई संसार संवई सुखम दुखम जनो मनता वेदक चितात्मना। बहुत संसारी कार्य प्रपंचों में व्यस्त रहने के कारण काल का ज्ञान नहीं होता हमें। ये कलेश की बात है कि मनुष्य अपने दुख सुख हित की बात को नहीं जानता। संसार में जीवों को उत्पन्न होते ही रोगादि दुख होते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हुए आपत्ति ग्रस्त होती है। दुखी देखकर संसारी मनुष्य मोह रूपी मदिरा पी करके पूर्वोक्त जन्म मरणादि विषय कलेशों से कभी भी भयभीत नहीं होता। संपत्ति ये सब स्वप्न के समान है। जो भी आप संपत्ति मिला है, पुत्र मिला है, धन मिला है, यहाँ पर कहा गया है कि एक राजा था, उसके जो है एक ही लड़का था और इतना बड़ा हो गया, नौजवान हो गया, शादी होगी और शादी के 10 दिन बाद वो लड़का देवगत को प्राप्त हुआ। अकेला लड़का और शादी के 10 दिन बाद देवगत को प्राप्त होना बड़ी दुख की बात। सभी बेहोश होकर के पड़े हुए थे, सभी बेहोश होकर के पड़े हुए थे। तब वहां पर देखते देखते राजा एकदम बेहोश में आ गया, और जब बेहोश की हालत आई तब उन्होंने सभी ने जल को पिलाया, सब कुछ किया, और करने के पश्चात क्या हुआ कि रात बीत गई, सुबह हुआ, सभी जगा रहे हैं उठो उठो, लेकिन उसको उठने का कोई भी मौका नहीं मिल रहा। और जब उठाया, अरे कहने लगे ये तो अब पागल हो जाएंगे, और अब जो है कि इनके अंदर होश नहीं है, इनको होश में लाया जाए। रोज कहने लगे हम कोई पागल नहीं है, हम जो रात्रि को देखा कि इतना सुंदर हमारे पास, इससे भी सुंदर घर है, 4 बच्चे हैं, बहुएं हैं, बच्चे हैं, मैं उनके लिए रोऊं कि इनके लिए रोऊं? तो इस तरह से भगवान ने बताया कि ये सारी संपत्ति स्वप्न के समान है। हमारा यौवन जो है, युवा अवस्था जो है, वो फूल के समान है,
खिले हुए फूल के समान ये कब मुरझा जाए इसका कुछ नहीं पता। ये सब जानते हुए भी मनुष्य को, एक तो मनुष्य की 100 वर्ष की आयु की बहुत थोड़ी होती है, उसमें भी निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर उसका आधा भाग बीत जाता है और शेष बाल्यावस्था में चला जाता है। उससे जो बचता है रोग आदि होने में दुख से चला जाता है और फिर थोड़ा बचा हुआ निष्फल हो जाता है। इसलिए एक नहीं हजार, हजार नहीं करोड़ों जब आपके पूर्ण उदय हुआ तो आपको मनुष्य का शरीर मिला। इसलिए मनुष्य का शरीर पा जाने पर उद्योग करना चाहिए, साथ ही वो साधना करना चाहिए। और जब साधना करना प्रारंभ कर दोगे तो जागरूक से रहना चाहिए। वो ही जो है कभी भी सोते बैठते उठते हर समय भगवान के ऊपर विश्वास रखो और कार्य को करते चलो, क्योंकि गीता में कृष्ण भगवान ने बताया कि देखो अर्जुन, हर मनुष्य को कार्य करना पड़ता है। अगर तुम ये सोचो कि मैं ये कार्य को नहीं करूंगा और कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो ये बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी। तुम्हें कार्य को करना होगा, फल मिलेगा, वो फल छोड़ दो कि कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। अगर तुम्हें यहाँ पर जीत गए तो यश प्राप्ति मिलेगी, कीर्ति मिलेगी। पीठ दिखा करके चले गए तो महाघोर नरक मिलेगा। अगर बीच में लड़ाई के चले गए तो स्वर्ग और वैकुंठ मिलेगा। इसलिए ये मनुष्य के जीवन में कार्य को करना पड़ता है, तो कार्य करते रहना चाहिए। तो प्रभु का नाम लेते रहोगे तो आपको अपने आत्मा पर विश्वास होता रहेगा कि हमें यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं। इस मौके ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, मंच पे विराजमान पंडित उमा शंकर जी ने गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय की समाप्ति करके इंसान को पैदा होने से लेके आखिरी सफर मरण तक अपने प्रवचन राही सानू दस्सिया। अज वो पवित्र आत्मा, मैं समझदा भक्ति भावना वाली, जे मैं कहा मीरा जी भक्ति, मां गंगा जी पवित्र आत्मा। साडे बहुत सत्कारयोग भाभी जी संतोष राणी, सुपत्नी बड़े भरा बैठे जोगिंदरपाल जी, परिवार को सदीपी विछोड़ा दे के परमात्मा के चरणों में जा रहे। क्योंकि जदों एक साथी चले जाता है इस उम्र के
ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। एक मुसाफिर का साथ जरूरी है दोस्तों, वरना बहुत बुरी है सहारों की जिंदगी। धार्मिक प्रगति की साढ़े भरजाई जी चले गए। मां शब्द जड़ा सिर्फ एक लफज का, मां शब्द ही एक लफज का, पर जड़ा उसका रिश्ता वा उस तो ऊपर बड़ा कोई दुनिया का रिश्ता नहीं है। किसी वेले आपां किसी बगीचे चो लंघ जाते हैं, उस बगीचे की जी महक आ फुलों की, जिधर नूं हवा होती है, हवा का रुख होंदा उधर जाते हैं। पर मां का जिहड़ा आंचल, मां का जिहड़ा आशीर्वाद आ, मां की जिहड़ी ममता का प्यार, ये हवा बन नहीं जाता कि सारे पासे घूम। अज इस शोक सभा दे विच अलग अलग पार्टियां दे समाज के नाल जुड़ियां मेहनत शख्सियत इस परिवार के दुख को घटाने के लिए इतने आईया, क्योंकि शोक फतेहगढ़ को बहुत आ। सिर्फ उन्होंने मैं ना ही पढ़ के सुनाऊंगा। हरि नाम संकीर्तन मंडली शाहपुर परिवार के नाल बहुत नेड़ता सीनियर एडवोकेट अशोक मित्तल जी, जतिंदर शर्मा जी सीए साहब, नवज वीकी तो संपादक दविंदर आलूवालिया जी, महिला शक्ति संस्था वालों शोकमता, SS जैन सभा शाहपुर वालों शोकमता दुर्गा भजन मंडली वालों अशोक जैन जी, सौरभ अग्रवाल सीए साहब, अरोड़ा महासभा के प्रधान बंटी बटला जी, इस शोक सभा के शाहपुर के सारे कौंसलर साहबान, साबका चेयरमैन साहबान, साबका प्रधान साहब वो भी इतने हाजिरी लवा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर शाहपुर उन्होंने प्रधान लाला बैद्यनाथ जी, जिथे अज शोक सभा हो रही। सेंट मनु कॉन्वेंट स्कूल सारा स्टाफ, प्रिंसीपल साहबान तो उन्होंने एग्जैक्टिव के प्रधान साहब, श्री बाला जी संघ रजिस्टर्ड फरीदकोट उन्होंने वालों भी शोकमता आया। कचाड़ की एसोसीएशन के प्रधान नेड़े की रिश्तेदारी भी है श्री पवन अग्रवाल जी, अमृत लाल जी काका जिहड़े कि शमशान घाट की भी सेवा कर रहे हैं, उन्होंने वालों भी शोकमता आया। अश्विनी जिंदल जी जनरल सैकटरी करियाना यूनियन शाहपुर, श्री ताराचंद जी XMC हनुमान मंदिर कमेटी वालों उन्होंने वालों भी शोकमता आया। कपिल कुमार जी गुप्ता फेडरेशन ऑफ आर्टिया एसोसीएशन के जिला प्रधान
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਰਸੇਮ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਸੀਏ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਕਾਸ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਸੀਏ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਵ ਜੀ USA ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤਰਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸੀਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ MLA ਸ਼ਾਹਕੋਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾਤਨ ਦੀ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਗੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੌਲੀਏ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਗਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੁਛ ਉਸ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਮੋਗਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ਾਹ, ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਸੰਕੀਰਤਨੀ ਮੰਡਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਠਾਕਰਦੁਆਰਾ ਨਵਾਂ ਕਿਲਾ ਰੋਡ, ਰਾਮਾ ਮੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਚੌਕ, ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗਲੀ ਨੀਅਰ ਜੈਨ ਭਵਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੁਰਲੀਦਾਸ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਮੰਦਰ ਪੀੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਚੌਕ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰਸਮ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਆਉਣ ਤੇ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪੁਰਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਸਭਾ ਜੋ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਕਰੀ ਬੋਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਕੱਲੇ ਆ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਸਦੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਭੋਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸਥਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਖੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ
मैं बेनती करता सी कि जी जीवन है ये परमात्मा का, असी अपने रिश्ते असी अपने प्यार से बचे हुए हैं। तो जो मैं ये अग्रवाल परिवार की गल करा, ये अग्रवाल परिवार साढ़े शाहकोट शहर का एक बहुत ईमानदार वधिया परिवार है, उच्ची सोच लैके समाज के विचरण वाला परिवार है। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सीए साहब साथ श्री तरसेम अग्रवाल जी बैठे आ, जिन्हों के रिश्ते वजों साढ़े भैन जी भरजाई जी लगते सी, और इन्हों का सारे परिवार का साढ़े शाहपुर को एजुकेशन देने के बड़ा बड़मुला योगदान है। कि वो गल्लां इस परिवार के हिस्से आईयां, क्योंकि कभी भी जदों तुसीं समाज के विचरते हैं, वो समाज के विचर के जो समाज को सही समय लोड़ा वा जदों साडे परिवार अगे आके वो लोड़ा पूरियां करते हैं, तो उस समय लो भी चंगी सोच एक सारे परिवारों तो समाज के जाती है, उस सोच तो बहुत लोग लाभ लेते हैं। ये सोच साढ़े सत्कारयोग भैन जी संतोष राणी के भी सी, क्योंकि बहुत बार मिलने का मौका मिले, जिमें उन्होंने सपुत्र विकास जी जिन्होंं असीं प्यार नाल विकी कह दें, और उन्होंने सपुत्री और भतीजे गौरव जी और डॉक्टर साहब सौरभ जी USA च, सारा परिवार अज इस दुख की घड़ी के आप अरदास करिए सच्चे पातशाह परमात्मा इस परिवार के मेहर भरे हथ रखन, प्यार विभाग बख्शन, तंदुरुस्ती बख्शन, चढ़ती कला बख्शन। ये परिवार इस दुख की घड़ी के विचों परमात्मा आप सहाई होकर इस दुख को घटाने का यतन कर। सो मैं हुक्म होया, क्योंकि परिवार का एक नज़दीकी संबंध होने करके, प्यार होने करके, क्योंकि इस परिवार का बच्चा ये वड्डे बैठे हैं साढ़े बजुर्गों नाल पुरानियां सांझां, और हमेशा इस परिवार को प्यार मिला। तो जे मैं अज इस योग हाँ तो इन्होंने परिवारों की बदौलत है जिस मंच से मैंने खड़ा किया। सो मैं सियाणिਆਂ की कहावत है, खुशी वेले इकट्ठे होइए तो खुशी बढ़ती है, दुख वेले इकट्ठे होइए तो दुख घटता है। अज तुसीं सारे दोस्त मित्र शहर निवासी रिश्तेदार अज दुख की घड़ी के अग्रवाल परिवार के नाल दुख साझा करने हाजिर होए। धन्यवाद करा सब तो पहले पवित्र गढ़पुराण जी का, तो पंडित जी का, जिन्हों ने सानू पवित्र गढ़पुराण जी जो जिंदगी और मौत के सफर वाले सानू ज्ञान दिता। धन्यवाद करा सारी आई हुई संगत का, साडा एक एक कदम चलिया साढ़े परिवार के सिर मथे। तुसीं परिवार के दुख विच शरीक होकर परिवार को हौसला दिता। साडे आउण नाल परिवार अगलियां पलंघां पट के समाज के उस तरह ही अगे वधूगा। इन्ना कुछ कहता है सारी संगत के माता जा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।